stand as a beacon of light in very tough times and times. I have a quick comment to offer, an observation, and one quick question. So my comment is, what we are seeing is today BJP has made the atmosphere as such. It is no longer about narrative building. It's about narrative control. How are we going to break into the narrative control? And with that question, I'm also requesting that we continue this series, because questions that you've raised today need to be gone into deeper if we are able to come out with some positive action. I think so. Yeah. So that's one comment. So the other thing, and that's also just quickly part of the comment. So we've just seen Why We Watch, Ravish Kumar. It's won an award from Harvard. And what we're seeing is these individual beacons of light still continue to remain individuals. I mean, at some level there is coming together. So it's almost like positive forces are always fighting alone, and negative forces are fighting as a band. What do we do to crack it? So that's just something I'm putting for the next conversation. And my quick question is, sir, we spoke about hatred in dark times. Do you have a practice, something that keeps you alive and going and kicking in these dark times? It could be a spiritual practice. So what's that something, when you feel broken, what helps you come back? Okay, to the last question, I mean, I don't want the sort of light to turn towards me, but I think I've been able to survive all of this, the hate that I see and all the persecution of the state and all, I mean, many things. It's been a really difficult time. On the one hand, it's this resolve that nothing will stop me from speaking, working, doing what I believe in. And I think I think it's also what has helped me maintain, keep going. I mean, otherwise my head is high and my conscience is clear, and I keep fighting the battles. If I go into prison tomorrow, so be it. But I think the other thing that sustains me is evidence of the kindness of ordinary working class people. और ये मैं मतलब कोई romantically नहीं कह रहा हूँ. मैं गुजरात में after I quit the IAS, I started working there intensely. I relocated almost for a year and so on. My wife tells me कि कई महीनों तक एक किस्म का I get up nightmares, and I'm a pretty strong person. मैं बहुत कुछ देखा, लेकिन उस जगह की क्रूअल्टी बहुत ज़्यादा थी. एक बच्चे को उदाहरण के तौर पे बहुत प्यासा था वो नरोला पाटिया में, तो उसको वो चुरा दिखा के पेट्रोल का बॉटल पे लाते हैं पूरा, और फिर then they put a lighting match inside him and he explodes. The kind of cruelty that they did there is unbelievable. And but having spent time there, I found so many acts of courage and kindness. मतलब मैंने ऑलमोस्ट मैं दोस्तों से एक चैलेंज करता था कि आप एक एक्ट ऑफ क्रूअल्टी दिखाएंगे, मैं उस जगह में जाके आपको 3 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जिन्होंने बचाया, मैं वो भी गुजरात की कहानी है, वो भी हमारी इंसानियत की कहानी है. तो और लिंचिंग में मेरे माय हार्ट ब्रेक्स मोर बिकॉज आई कांट फाइंड दो स्टोरीज नाउ, एंड आई थिंक दैट रिवील्स a further breaking down. But नाज़ी जर्मनी में मैंने स्टडी किया था, तो हिस्टोरियंस बताते हैं कि the percentage of Germans who saved Jewish lives was 0.01%. 0.01%. उससे हम we haven't gone there yet. मतलब मुझे लगता है कि हमारे अभी भी 20-30-40% लोग हैं जो कम से कम दिल से महसूस करेंगे, कुछ लोग सामने आएंगे. बट द थिंग दैट कीप्स माई होप्स एंड स्पिरिट्स अप इज़ कि मुझे लगता है कि आम हिंदुस्तानी अभी भी उस हिंदुस्तान को समझता है, उसको जी रहे हैं. मैं दुनिया भर में जाता हूँ, मुझे लगता है कि क्विंटेसेंशियल इंडियन, मतलब जो द रियल क्विंटेसेंशियल इंडियन इज़ दिस वुमन जो एक स्लम से निकलती हैं, सड़क पे जा रहे हैं, एक मस्जिद दिखता है वहाँ सर झुकाती हैं, थोड़ा आगे जाती हैं एक गिरजा दिखता है वहाँ सर झुकाती हैं, एक मंदिर दिखता है, गुरुद्वारा दिखता है वहाँ सर झुकाती हैं. वो महिला मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलती. दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ. उसको टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन अभी भी है.
नहीं और जो नैरेटिव का कंट्रोल की बात है, विच इज़ आई थिंक अ वेरी वेरी बिग थिंग, एंड व्हाई डू गुड पीपल नॉट come together? Good people not coming together is very true. This has been a period of great loneliness for me. I mean, I never realized how much you feel alone because publicly कौन आपके साथ, जो peers आप अपेक्षा कर रहे थे कम होते जाते हैं, बहुत कम होते जाते हैं. तो ये कमी है. और ये जो दूसरे तरफ के जो हम जिनको दुष्ट मानते हैं, they have many differences but they've stayed together through these they're very dedicated. उनका डेडिकेशन, मैं आरएसएस के डेडिकेशन की कहानियाँ मैं शुरू करूँ. एक ज़िले में मैं था जहाँ पे 89 के दौरान जब ये बाबरी मस्जिद का पूरा हुआ. satisfy होता है इस चीज़ से, तो that why they are dedicated. No, but they believe in something. तो एक जगह था, दंगा हुआ था, हम लोग में 19 दिन 19 रातें, वी जस्ट केप्ट ट्राइंग टू मेंटेन पीस. हर जगह ठीक हो गया था, पर एक जगह से कहते थे कि रात को 12-1 बजे पत्थर फेंकते हैं. लोग कहते हैं कि मस्जिद से लोग पत्थर फेंक रहे हैं, दंगा फिर से हो जाएगा, दंगा हो जाएगा. हम लोग पहुंचते थे, यार मस्जिद इतना दूर, टेढ़ी गलियां. मैं कहा कि यार इनको तो नोबेल वो ओलंपिक्स में डालना चाहिए, कहाँ से पत्थर फेंकते हैं. मतलब इट्स कम्प्लीटली इरेशनल. पर ये है समझ में आ रहा था. आई हैड अ वेरी कॉम्पिटेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉलीग. एक दिन हम पहुँचे तो पत्थरों के बीच में एक टूटा कप था. तो वो कप उठाए और एक घर में घुसे, पहली मंजिल में गए, 5 और ऐसे कप्स थे, ये छठा कप था. फिर दूसरे मंजिल में गए और क्या हमने देखा कि एक इतना बड़ा बक्सा पत्थरों से भरा हुआ था. अच्छा, ये एक बुज़ुर्ग आदमी आरएसएस के ये करते हैं, इन्होंने अपना काम ये ढूंढा था कि 12-1 बजे जब सब लोग सो जाते थे, उठ के पत्थर फेंकना शुरू करते थे. फिर लोग उठते थे, ये कहते थे कि देखो मुसलमान अभी भी सुधरते नहीं हैं, देखो ये अभी भी ये कर रहे हैं. मतलब जो भी हो, मतलब ही विल नॉट गेट एनी रिकॉग्निशन, ही विल नॉट गेट एनी पोजीशन. जिसको वो बिलीव कर रहा है, वो अपना मतलब मेहनत कर रहा है ना. मतलब बहुत ही नफरती मेहनत है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन डेडिकेशन तो है जिस टू व्हाट ही बिलीव्स. हम लोग क्या करते हैं? कौन दंगों के बीच में आधी रात में खड़े होके अपने हिसाब, अब हम मोहब्बत की बात करते हैं, क्या हम कर रहे हैं उसके बारे में? दैट डेडिकेशन इज़ देयर.